ठीक है। बढ़ते ही हैं। तो ऐसे का टॉपिक है री इमेजिनिंग इंडिया इन पोस्ट कोविड वर्ल्ड। तो ठीक है यार, ये राधिका मैम का ऐसे देखते हैं अपन। देर आर डिकेट्स व्हेन नथिंग हैपेंस, देन देर आर डेज व्हेन वीक्स हैपन, और व्हेन डिकेट्स हैपन। नो सर, ये लेनिन का कोट डेज है, और देर आर डेज डिकेट्स और व्हेन नथिंग हैपेंस। हाँ सर, बोलो बोलो। वही सर, आप ठीक ही पढ़ रहे, मतलब डेज और वीक व्हेन डिकेड सर। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। तो ये बढ़िया सा ये कोट था, लेनिन का लिखा था। क्वेश्चन है री इमेजिनिंग इंडिया इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड। इट ऑल स्टार्टेड समवेयर इन द मिड December 2019. The city of Wuhan in China saw emergence of new virus which was deadly, infectious, and had a very rapid progression. In a matter of a couple of months, it engulfed in the entire world thanks to globalization. Along with that, it took millions of lives, affected almost every country, and stopped economies to a screeching halt, confined almost entire world to its homes, and pushing millions to poverty. India was no different. The curtains on India too were pulled away, and it showcased just how fractured our systems were. But they say every problem offers an opportunity in disguise. Coronavirus too offers such opportunities to reshape, reimagine, and rebuild our country for better. But for that, we first need to understand the fractures and vulnerabilities. यार ये जो है ना, एवरी प्रॉब्लम्स अपॉर्चुनिटीज इन डिस्गाइज, इसके ऊपर एक दो कोट्स भी है बढ़िया, किसी को याद आ रहे हैं? मतलब कोट में बढ़िया बोली हुई है, नेसेसिटी इज पहले मदर ऑफ पढ़ ली, इन्वेंशन। पहले पढ़ ली, उसके बाद करते हैं। सर बाद में याद नहीं आएगा ना। जो ये कोट था, इसके बारे में कुछ अल्टरनेटिव है किसी के पास लाइन? क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि मैंने पढ़ा हुआ है कुछ ऐसे। वही तो है सर, इन एवरी, क्या है, इन एवरी प्रॉब्लम लाइज सम अपॉर्चुनिटी, ऐसा ही है कोड। इन एवरी क्राइसिस, इन एवरी क्राइसिस द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, ऐसा कुछ है वो। ठीक है सर। अरे उसका एग्जैक्टली कीवर्ड्स है, मतलब इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, नहीं तो नहीं पूछता मैं। ठीक है। द पैंडेमिक showdown of fractures and vulnerabilities in India's systems. We all still have fresh images of poor migrants walking thousands of miles desperately after the sudden lockdown was announced. It displayed their poverty, destitution, and the little resilience to stay in cities in such times of crisis. It showed the क्या लिखा है रो? Wide inequalities present around us, while some section of society cheerfully sat in confines of home. These migrants suffered deaths due to heat strokes, train accidents, cholera, or starvation. While Lenin was right about how decades can happen in a couple of days and months, this tiny microscopic virus, virtually invisible to naked eyes, pushed back decades of gains of MDGs and threatens the progress of SDGs. ये बढ़िया लिखा है यार, अच्छा कनेक्शन किया है ना। इतना छोटा सा वायरस है, फिर भी इतना SDGs MDGs को अफेक्ट कर रहा है। The job losses, high rates of unemployment, increasing debts of countries, rising poverty, food crisis, all adds up to the existing vulnerabilities. India's economic contradiction in the first quarter post-COVID was to a tune of minus 24% of GDP, which threatened a possible recession. The unemployment rate, even before pandemic, was the highest in 45 years, 6%, which now is even higher in the post-pandemic India. Many small and medium enterprises collapsed due to inability to pay loans. तो MSFs के बारे में बोल दिया, lack of demand, lack of credit, and also labor. This led to reduced incomes, and especially at such a needy times. Another parallel crisis that dampened India's prospects were the cyclones and the locust. Cyclone आए, locust attack आया on northwestern border. These environmental vagaries gives a strong signal that such incidents will be more frequent in future. There is a keyword है, abuse of environmental ecology beyond its carrying capacity. Increased human interventions in nature has led to beyond the capacity to rebuild. Itself, homeostatic principle. The world and India will witness more such pandemics in the future. If a course of correction is not done. सर यहाँ पे वो वाला बुक लिख दो, फरीद जकाया का जो है ना,
10 लेसन फॉर द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, बढ़िया फिट हो जाएगा इसमें। यार एक और चीज ना याद आ गया मेरे को अभी, जो पीएसआई में अपन बुक्स वगैरह पढ़ते हैं ना सर, ऑथर का नाम एंड बुक का नाम लिख दो, दैट हैज अ वेरी वेरी ह्यूज इन्फ्लुएंस। क्या लग रहा है आप लोग को? ठीक है सर, मतलब अगर अच्छा आइडिया भी लिखना पड़ेगा उसका, अगर बड़ा मतलब ज़्यादा मतलब फेमस नहीं है, ऑल मल्टी डायमेंशनल नहीं है तो। ठीक है सर, तो इंट्रोडक्शन में लेनिन का बोल दिया, वुहान वायरस का इंट्रोडक्शन कर दिया, फिर उसका पैंडेमिक से क्या क्या निगेटिव दिख रहे हैं वो बताया। इसमें पहले तो बताया पुअर माइग्रेंट का, दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे फिर पावर्टी डेस्टिनेशन इकोनॉमिक बताया, फिर लेनिन का बताया कि एसडीजीएमडीएस पे कैसे इफेक्ट हो रहा है वो सब, 24% जीडीपी वाला बताया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% हो रहा है, फिर एमएसएमईज का बताया, क्रेडिट क्रेडिट एंड लेबर का बताया शॉर्टेज कैसे हो रहा है, फिर लोकस्ट अटैक, साइक्लोन, एनवायरमेंटल वेगरीज, कैरिंग कैपेसिटी। इतने में से 4 पेज हो गए। सर कुछ ऐड करना है? एनी कमेंट्स अंटिल नाउ? इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ कमेंट्स है किसी के? एनी अदर अल्टरनेट इंट्रो वगैरह? हाँ, किसी को कुछ एनेक्डोट वगैरह पता है क्या? हाँ, बोलो बोलो। क्या बोल रहे थे? नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, किसी को एनेक्डोट या कुछ और पता है क्या, मतलब कुछ और ऑल्टरनेटिव इंट्रो हो सकता है क्या? सर आई वुड हैव स्टार्टेड विथ माइग्रेंट वाला यार। कोविड का मतलब बहुत बड़ा मेजर इशू ये था कि हाउ एवरीवन वाज स्टक इन देयर ओन होम्स। तो आई वुड स्टार्ट कि यार ऑल ऑफ अ सडन एक दिन ऐसे पीएम ने अनाउंस कर दिया कि लॉकडाउन लगने वाला है, एंड देन हाउ इट ऑल टर्नड अप। हम्म, आप बोल तो ठीक है, सही रहे मतलब हो इनका यार। भी वही है एक्चुअली, अलग नहीं बोल रहे हो। हाँ, मतलब आप जो बोल रहे हो वो भी सही है, लेकिन एक्चुअली वो पोस्ट कोविड वर्ल्ड के बारे में बोल रहा है। तो आप जो बोल रहे हो वो कोविड के टाइम्स में बोल रहे हो, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कैसे मैच कर पाएंगे। ठीक है, मतलब इनका कुछ नहीं बोला तो जैसे इनका ही ले। पीएसआई में होता है ना, और भी पूछा तो हिस्ट्री चालू करते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है उससे सर, वो अच्छा फिर स्टार्ट आप है मेरे को लग रहा फिर आप लिंक कैसे करोगे, वो मेरे को एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजन है, आप लिंक कैसे करोगे? है। लिंक तो सर सर लास्ट में कोविड ही के डाल टाइम पे देंगे। कोविड का अनाउंसमेंट हो गया था तो negative हो गया। सर आगे आगे दिया है सर, वो वही करा है आई थिंक, ये वाला ऐसे उसी फॉर्मेट में है। देखते हैं अपन आगे ना। हाँ, ठीक है ना। सर आप अभी तक समझ गए ना कैसे करा है इन्होंने? पहले तो कोविड क्राइसिस बोल दिया, चैलेंजेस बोल दिए, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक डायमेंशन बता दिए, एंड आगे कंटिन्यू होगा अभी। ठीक है सर। हाँ, एक्चुअली अभी समझ गया, एक्चुअली नेटवर्क नहीं था ना, तो ठीक है, कंटिन्यू। हाँ, ठीक है ठीक है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शो ऑफ वल्नरेबिलिटी वाज हेल्थ केयर सिस्टम। 1.35% ऑफ जीडीपी अपन स्पेंड करते हैं हेल्थ के ऊपर। इट्स डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो 1:1500 है, लेकिन डब्ल्यूएचओ का रिकमेंडेशन है 1:1000। द नंबर्स ऑफ डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स इज लो। द इंफ्रास्ट्रक्चर डोमिनेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर विच गिव्स वे टू रूरल अर्बन डिवाइड। इंक्रीज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 69% है ना शायद कुछ तो अभी। नहीं, अभी 48 हो गया शायद। इकोनॉमिक आउट सर्वे ऑफ में पॉकेट कितना होता है? इकोनॉमिक सर्वे 2019 में किसी ने बोला था कि 60% या 65% है, और अभी शायद 48% कुछ किसी का तो आया है, यूएन या किसी का तो है, तो थोड़ा कम हो गया आयुष्मान भारत के बाद। कोई नहीं सर, ज़्यादा वाला ही लिखना है। ठीक है सर, ठीक। हाँ, ओके, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होगा। लैक ऑफ डाटा आल्सो लेड टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ बेड्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रेजेंट। ऑल दिस लेड टू ओवरबर्डन मेडिकल स्टाफ, पुअर हेल्थ गवर्नेंस फॉर मासेस। द ब्रेकिंग ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स फर्दर लेड टू प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ इंडियाज डिपेंडेंस फॉर एपीआईज ऑन चाइना। 70% डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर अपना। सर ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख लेना। Even the basic medicines couldn't be manufactured. The capacities of our primary healthcare centers is very poor due to increased focus on tertiary care, less on primary and preventive care.
The pandemic took away focus from other deadly infectious diseases like TB, HIV, which kill millions in India. It added psychological mental health problems due to people being confined in homes for months. The issue of adult vaccination capacity, less focus on epidemiological disease study has also come to forefront. Amid all these issues, though the government institutions tried their best to handle an emergency crisis, the flaws in our governance, center-state relations were at display. Center denied denial of GST compensation due to states at the times of need of higher finances, distinction between IT expenditure to PM care and CM relief fund, diluting question hour at a time of pandemic, Chinese aggression, economic slowdown, ट्रिपल बर्डन क्राइसिस. कोई बताएगा यार ये ट्रिपल बर्डन क्राइसिस क्या है? पर मतलब डबल अलग अलग बर्डन उसको बोलते हैं ना सर कि गरीब वाला बीमारी भी है और अमीर वाला बीमारी भी है, और ट्रिपल बर्डन में शायद अभी ये सब आ जाएगा, कम्युनिकेबल डिजीज वाला. सही है, ठीक है. सर यहाँ पे मेरे हिसाब से अलग है थोड़ा सा. एक तो हिंदू का आर्टिकल दिख रहा है मेरे को, द ट्रिपल वर्क फ्रॉम होम हैज पुट वर्किंग वुमन अंडर ट्रिपल बर्डन. ये कोविड ने बोला है, जो रामनाथ कोविंद है ना अपने प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला है कि कोविड की वजह से वुमन को ट्रिपल बर्डन में आया. इसका क्या मतलब है? डबल बर्डन था पहले से, ये पेड वर्क और अनपेड वर्क, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब चिल्ड्रन भी घर पे रहने लग गए हैं, चिल्ड्रन का केयर करना. और क्या है तीसरा बर्डन? वो भी सही है. और एक इकोनॉमिक में हम लोग फिजिकल डेफिसिट, पर वो यहाँ पे फिट नहीं होता है, लेकिन बता रहा हूँ मैं. हाँ. तो अच्छा ट्रिपल अच्छा बर्डन सर डबल बर्डन ऑलरेडी क्या था ना, एक तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेड वर्क है, दूसरा है अनपेड वर्क डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, एंड तीसरा है ये चिल्ड्रन वगैरह का केयर करने का. अब वो भी घर पे रह गए ऐसे, इसलिए. हाँ, मतलब ट्रिपल बर्डन सर कीवर्ड है, इसको सर डिजीज कोई के लिए भी कंफर्म यूज कर सकते हैं. करिए. अरे अरे सर कुछ ये नहीं, तो क्या बता दो आप जो पहले बोल रहे एक हो, बार, करते हैं ना. नहीं आप जो भी बोल रहे हो सब ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है. सब ट्रिपल सही है बर्डन हर सर. जगह में आता है. मतलब माल न्यूट्रिशन हाँ. में ओबेसिटी भी आ जाता है, और वो अंडरवेट स्टंटिंग उसमें भी ट्रिपल बर्डन हो जाता है. डबल शीट प्रॉब्लम हो गया, जिसमें भी आपको लग रहा है कि 3-4 प्रॉब्लम एक ही सेक्टर में है, तो उसको डबल बर्डन ट्रिपल बर्डन डाल दो, वो चल जाएगा. हाँ. वही. सर तो आप बोल दो ना सर ट्रिपल बर्डन कौन से है, कोई तो बोल दो, एक तो बोल दो. तो सर मतलब आपने जो जैसे बताया मेरे को, इकोनॉमी में होता है कि फिजिकल डेफिसिट भी है, करेंट अकाउंट डेफिसिट भी है, एनपीए का प्रॉब्लम है, तो इसी को बोल देते हैं ट्रिपल बर्डन. फिर जैसे आपने वुमेन के केस में बताया, फिर एक डिजीज के केस में होता है कि मतलब गरीब लोग वाला डिजीज जैसे माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, ये सब होता है इंडिया में. फिर अमीर लोग का डिजीज यानी हार्ट अटैक और ओबेसिटी, ये सब होता है. अब ये थर्ड टाइप का हो जाएगा कम्युनिकेबल डिजीज. तो ऐसे कहीं भी लिख सकते हैं इस चीज को. ठीक है सर, थैंक यू. सर प्लीज जरा इसके ऊपर ना कुछ डाल देना, मतलब थोड़ा ट्रिपल बटन कौन सा लिखोगे आप लोग, एग्जाम्पल डाल देना सर ग्रुप में. एक्चुअली अभी अगर ज्यादा टाइम नहीं मतलब जो लगाऊंगा आप तो बोल रहे हैं ट्रिपल बटन का. हाँ सर वो देख लेना. मतलब हर एक सर सेक्टर बोल में दो बोल आपको दो. अगर, हाँ मतलब हर एक सेक्टर में आपको डबल बर्डन या ट्रिपल बर्डन मिल गया, तो वो एक तरीके से अपन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि अपने को वैसे भी हमारा एनालिसिस सेक्टोरल या डिमेंशनल होता है ना, तो हम हर जगह यूज कर सकते हैं. मेरा मतलब अब मेरे को लग रहा था थोड़ा इंट्रो शायद ये वाला ले सकता हो कि इन वन ऑफ द प्रोग्राम, फिर वो पीएम मोदी का जो क्या बोलते हैं, मन की बात है, ही पीएम मोदी ऑनरेबल जो भी डालना है आपको, ही आस्क्ड वेरियस फेलो सिटीजन्स कि आपका क्या टेक है, मतलब पोस्ट कोविड वर्ल्ड में इनकी प्रॉब्लम पूछ रहे, मतलब एक तो कोविड वर्ल्ड में प्रॉब्लम पूछ रहे थे, फिर आपको क्या लगता है कि इंडिया कैसा होना चाहिए, फिर उसमें फिर क्वेश्चंस में अपन डाल देंगे, और फिर स्टार्ट करके अपन मतलब कैसा ये होना चाहिए, तो फिर वो ऐसे का बिल्कुल वो बन जाएगा. एक ऑल्टरनेटिव इंट्रो बोल रहा था मैं. ठीक, कंटिन्यू. ठीक है सर.
तो आगे चलते हैं सर, एक बार समराइज कर लो या फिर आगे चलूं पहले। सर आगे चलना भी पूरा खत्म करते हैं। द हैंडलिंग वाज लार्जली, सर फिर आप समराइज करोगे आखिरी में, ठीक है? सुन लेना अच्छे से। द हैंडलिंग वाज लार्जली डन थ्रू डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड एपिडेमिक डिसीज under 1000 ad hoc reactionary guidelines were given to states. These acts don't include provisions for dealing with epidemics or such emerging new diseases. A clear legislative overhaul is needed here. If history is to give its lessons, we must acknowledge the Spanish flu and its aftermath. The Spanish flu in the 1920s, World War I, ravaged the world. Still, the USA's Congress denied President Woodrow Wilson's plans to rebuild for peace in Europe. 1920s की बात कर रहा है कि वुडरो विल्सन के प्लान को पीस इन यूरोप नहीं होने दिया. It led to a devastated Germany and failed League of Nations. ठीक है, तो devastated Germany हो गया and failed League of Nations. World War II and Great Depression added to the crisis. Today the world is more interconnected than ever before. Need for rebuilding is even more. If India wants to reimagine a better India, it needs to take lessons from the history and make sure of global convergence and collaboration for its even betterment. Reimagining India, build back better. तो ये नया हेडिंग आ गया इनका, बढ़िया. तो एक बार देखते हैं, अभी अपन पेज नंबर शायद कौन से 10 नंबर पे लग रहे हैं सर. तो ये देख लो, टॉपिक था रीइमेजिनिंग इंडिया पोस्ट कोविड वर्ल्ड का. लेनिन के कोट से स्टार्ट कर दिया. फिर ग्लोबलाइजेशन का ये वुहान का क्राइसिस वगैरह थियरी बता दिया कैसे हो रहा है, वो किस तरीके से हो रहा है. तो पेज नंबर 1 हो गया. सेकंड पेज में इंडिया का वल्नरेबिलिटी स्टार्ट कर दिया और एक हेडिंग बना दिया सर, द पैंडेमिक शोडाउन ऑफ फ्रैक्चर्स एंड वल्नरेबिलिटीज ऑफ इंडिया सिस्टम. तो इंडियन सिस्टम में क्या फ्रैक्चर से क्या वल्नरेबिलिटी स्टार्ट कर दिया. अब फ्रैक्चर बताएंगे. पहला फ्रैक्चर बताया पुअर माइग्रेंट का, फिर पावर्टी, डेस्टिनेशन, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वगैरह. फिर बताया कि कैसे एसडीजीज एमडीजीज वगैरह खराब हो गए. जीडीपी अपना -24% हो गया. अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% हो गया. क्रेडिट लेबर वगैरह बताया. फिर साइक्लोन, लोकस अटैक, एनवायरमेंटल क्राइसिस, कैरिंग कैपेसिटी, फिर होम्योस्टैटिस वगैरह. फिर हेल्थ केयर सिस्टम का 1.3% करते हैं, लेकिन फिर भी ये डॉक्टर पेशेंट 1 से 1500 है. आउट ऑफ पैकेट एक्सपेंडिचर 69-60% है, और सर ने बताया 48% हो गया, रिसेंटली हो गया है. तो ये सब क्या दिखा रहा है, ओवरबर्डन मेडिकल सिस्टम हो गया. ग्लोबल सप्लाई चेन में सर इंडिया को प्रॉब्लम है. फिर एपीआई ऑन चाइना डिपेंडेंस 70% है, टर्शियरी केयर पे ज्यादा करते हैं. फिर पैंडेमिक ने टीबी वगैरह ये सब जो बाकी डिसीजेस पे फर्क पड़ दिया. इपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज वो जो है उसको आगे लेके आ गए. फिर जीएसटी कंपेंसेशन बताया, सीएम का रिलीफ फंड, पीएम केयर डिबेट था वो. फिर सर ट्रिपल बर्डन इकोनॉमिक स्लोडाउन के बारे में बताया. तो मतलब पैंडेमिक, चाइनीज एग्रेशन एंड इकोनॉमिक स्लोडाउन, इसको बोल रहे ट्रिपल बर्डन. ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी हो गया. डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एपिडेमिक एक्ट, लेजिस्लेटिव ओवरऑल की जरूरत है. स्पेनिश फ्लू. फिर हिस्ट्री पे आ गए. वो हिस्ट्री पे आए और बताया कि भाई इंडिया को अगर आगे बढ़ना है तो हिस्ट्री सीखना होगा. हिस्ट्री एग्जांपल क्या दिया, वुडरो विल्सन का स्पेनिश फ्लू 1920s का, वर्ल्ड वॉर 1. तो उसके बाद भी लोग सीखे नहीं, जर्मनी एंड फेल लीग ऑफ नेशन हो गया. और फिर इसका रिजल्ट क्या हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 और ग्रेट डिप्रेशन. और यहां तक अपने कितने पेजेस कर लिए, 5 पेज हो गए, 6 पेज हो गया, 7 पेज और 8 पेजेस. तो मतलब 8 पेजेस जो हो गए वो निगेटिव लिखने में चले गए, इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन. अब आगे 9, 10, 11, 12 4 पेजेस में पॉजिटिव बताएंगे यहाँ पे. एनी कमेंट्स टू मेक एनीबॉडी? मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब पूरा नेगेटिव नहीं करना चाहिए था. यहाँ पे था रीइमेजिनिंग पोस्ट कोविड, तो मतलब पॉजिटिव वाला क्या करना चाहिए था वो ज्यादा फोकस में चाहिए था. बाकी तो ठीक है. ठीक है सर, बाकी एनी अदर कमेंट्स? अमित सर, इजराइल सर, कुछ कहना है आप लोग को? तो चल लो आगे, मतलब नहीं है तो. आगे चलो. ठीक है. Farid Zakaria, in his book 10 Lessons for the Post-Pandemic World, has given several ideas that offer a reimagination for India too. First, reducing inequalities has to be our priority. Empowering people
with jobs, skills, and health. Better health will only give resilience of and enable harnessing potential of demography. Inclusive development with focus on healthcare. तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, हेल्थ केयर करना है, एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव करनी है, इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग करना है, इज द वे फॉरवर्ड. इमेजिनेशन. अ ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडिया रैंक 101 है ना अभी शायद, ऑफ 120 कंट्रीज. और जेंडर गैप रिपोर्ट में 135 रैंक है आउट ऑफ 156 कंट्रीज. 46. मल्टीनेशनल पॉवर्टी में क्या रैंक है सर? सर कोई समराइज करो तीनों भी जिसको याद है. जो आपने स्टार्टिंग के 2 बोले वो सही है. एमडीपी का थोड़ा देख के बताता हूँ. सर एमडी मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 66 आउट ऑफ 109 है. हाँ, मेरे को भी वही दिखा रहा है, 66. लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम है कि ये नीति आयोग का है. यूएनडीपी कुछ अलग निकलता है या ऐसा कुछ तो नहीं ग्लोबल दिया है. हाँ ठीक है. सर ग्लोबल दिखा रहा है वो. ये कंफर्म ठीक है. ग्लोबल 66 नॉट 66 पता नहीं यार, मतलब ठीक है, डाल देते हैं अपन. 66 ही रहेगा. ग्लोबल बोला ना उसने. हाँ लिखा तो है यार, देख लेना मतलब. चलो ठीक है. एनीवेज हंगर का 100 है, 101. कितने कंट्री में से सर हंगर का? ये सेकंड वाला तो नहीं याद रखता हूँ मैं ज्यादातर, मतलब इंडिया रैंक ही लगता हूँ. सर 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज है. 101 आउट ऑफ 120 एक दो चाहिए तो, लेकिन सर दैट शोज ना कितना ग्रेविटी है. 116 में से हमारा 101 रैंक है. जैसे 135 आउट ऑफ 146 है वो जेंडर गैप में. हाँ जी, 135 आउट ऑफ 146 रैंक है. बहुत ज्यादा मैटर करता है ना ये चीज. समझ रहे हो सर? हाँ सर, वो समझ में आ जाता है कि ठीक बहुत है. ज्यादा लोअर एंड में है वो. लेकिन प्रॉब्लम वही होती है, लर्न नहीं होता वो. ठीक है, जिसको होता है वो कर सकता है. ठीक है, कंटिन्यू. हाँ सर देख लेना, मतलब ट्राई कर लेना. 101 आउट ऑफ 116, 135 आउट ऑफ 146 और 66 आउट ऑफ 109 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. आगे चलते हैं. इट्स दिस शोज दैट वी हैव टू प्रायोरिटाइज हेल्थ and worry the most. Existing schemes implementation of reducing their issues, empowering local bodies in implementation for better outcomes is needed. Pandemic brought changes like focus on sanitation, hand washing, mask cleaning, mask wearing, which otherwise are very difficult because they need people's will. These positive changes have to be banked upon, and similar approach to deal with diseases TB and HIV needs to be put up, taking lessons from the COVID. The new India post-COVID needs to understand and respect the nature, ecology, and its species. Indiscriminate abuse of nature. Such pandemics will only become frequent. तो नेचर एंड इकोलॉजी का इनडिस्क्रिमिनेट अब्यूज कर रहे हैं अपन. मास मोबिलाइजेशन करना है, रेज अवेयरनेस करना है, एजुकेट करना है पीपल को, रिन्यूएबल्स वगैरह पे फोकस करना है, सस्टेनेबल सोर्सेज पे फोकस करना है. इंडिया का इनिशिएटिव है जैसे ISA, INDC, कमिटमेंट्स टू रेड प्लस आर स्टेप इन द राइट डायरेक्शन टू रिबिल्ड इकोनॉमी, बिल्डिंग सेल्फ सफिशिएंट इंडिया एंड ऑल्सो कैपेबल इनफ. तो इकोनॉमी को रिबिल्ड करना है, आत्मनिर्भर बनाना है, सेल्फ सफिशिएंट करना है, कैपेबल इनफ टू पार्टिसिपेट इन सप्लाई चेन्स इज द इमेजिनेशन नाउ. Need to reduce dependency in critical areas like pharma and build local capabilities through initiatives like Atmanirbhar Bharat. In the realm of governance, we need to consolidate our present learning just like Taiwan did post its SARS experience or like Kerala did post Nipah. They could smartly trace and track, segregate people, building the digital infrastructure with employing technologies like AI and machine learning can go a long way in taking preemptive steps and analyzing risk. The Bhilwara model of Rajasthan, इसमें टी धारावी का नाम लिखना हो तो लिख सकते हो आप लोग, और धारावी स्लम कंटेनमेंट मेजर, ये महाराष्ट्र का, धारावी स्लम मुंबई का.
So resilience of capabilities of our existing structures, those needs to be replicated for better. A pandemic of such enormous scale that is new to the people is not witnessed in the long time offers a different pathways to reimagine our country. Either we could take a fine, narrow or inward looking approach, or we can look to strengthen every limb of our system to ensure minimal vulnerabilities. The pandemic can truly reimagine, reshape, rebuild India, provided we decide to bring changes that can lead to decades happen in short time. तो इंट्रोडक्शन से लिंक कर दिया अभी यहाँ पे ना, decades happen वाला. Only this manner of aspiration, the COVID-19 presents an opportunity to showcase a humanistic face which needs to be grabbed at earliest. एक बार ना इनका स्ट्रक्चर में बोल देता हूँ, अपन ने आधा कर लिया था. कहाँ गया? हाँ, तो कोट लेनिन का था कि देर आर डिकेड्स व्हेन नथिंग हैपेंस एंड डेज ऑन वीक्स व्हेन डिकेड्स हैपन. एक लेनिन का कोट था. फिर वुहान से स्टार्ट किया, वायरस ने कैसे कैसे तबाही मचाई ग्लोबलाइजेशन की वजह से. क्या हो गया? मिलियंस लोगों को पॉवर्टी पे डाल दिया. इंडिया क्या वल्नरेबिलिटी बता स्टार्ट किया सेकंड पेज पे, फिर ना हेडिंग बना के. फिर आगे पावर डेस्टिनेशन, लेनिन, एसडीजी एमडीएस पे क्या इफेक्ट हुआ? -24% जीडीपी पे हुआ. अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% पे चला गया. क्रेडिट नहीं मिल रहा था, लेबर नहीं मिल रहा था. एनवायरमेंटली बताया कि यार साइक्लोन हो रहे थे, लोकस अटैक हो गया. कैरिंग कैपेसिटी से बाहर चले गए, होम्योस्टेटिक से बाहर चले गए. फिर हेल्थ केयर में 1.3% स्पेंड करते हैं. डॉक्टर पीपल 1:1500 है. WHO बोलता है कि 1:1000 होना चाहिए. आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 60% या फिर 48% लिख दो. रिकमेंडेशन है 20, ये कमेंट देख लो साइड में, रिकमेंडेशन है 2.5% जीडीपी. डॉक्टर पेशेंट रेशियो 1:700 बोल रहा है. ठीक है भाई, चलो आगे. फिर ग्लोबल सप्लाई चेन पे हुआ असर. जो एपीआई के लिए अपन चाइना पे 70% डिपेंडेंसी है. जो पब्लिक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, जिसको भी वेलनेस सेंटर बोलते हैं, उनका भी हालत खराब है. टीबी, एचआईवी, एड्स, वैक्सीनेशन कैपेसिटी, स्टडीज, फोरफ्रंट वगैरह वगैरह. जीएसटी कंपनसेशन का प्रॉब्लम हुआ था. सीएम रिलीफ वर्सेस पीएम केयर्स, चाइनीज अग्रेशन, इकोनॉमिक स्लोडाउन, ट्रिपल बर्डन, एपिडेमिक एक्ट वर्सेस ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो दोनों लेजिस्लेटिव ओवरऑल की जरूरत है. हिस्ट्री का एग्जांपल दिया, स्पेनिश फ्लू इन 1920, वर्ल्ड वॉर 1, प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन के प्लान फेल हो गए. जर्मनी, लीग ऑफ नेशन फेल हो गया. वर्ल्ड वॉर 2, ग्रेट डिप्रेशन. सर ग्रेट डिप्रेशन कब आया था? 1929. ठीक है, फिर आगे देखते हैं. फिर री इमेजिन कैसे करना है, ये पेज नंबर 8 पे चालू करा. फरीद जकारिया, 10 लेसन फॉर द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, जॉब, स्किल, हेल्थ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, क्वालिटी, इकोनॉमिक, सोशल वेलबिंग. फिर रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101 आउट ऑफ 116. जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 135 आउट ऑफ 146. तो ये 10-10 है ना. 101 प्लस 10 किया तो 116 आएगा. 135 प्लस 10 किया तो 146 आएगा. तो याद नहीं आएगा तो कुछ भी लिख दो. मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में 66 आउट ऑफ 109 कंट्रीज. फिर एम्पावर करना है लोकल लेवल पे लोगों को, पॉवर्टी हटानी है, स्कीम चलानी है, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग, मास्क, ये सब करना है. टीबी, एचआईवी, नेचर, इकोलॉजी, इनडिस्क्रिमिनेट अब्यूज नहीं करना है. रेज अवेयरनेस, एजुकेट पीपल, रिन्यूएबल पे फोकस करना है. आईएसए, आईएनडीसी, रेड प्लस, सेल्फ सफिशिएंसी, फार्मा, आत्मनिर्भर. ये ताइवान का क्राइसिस, सार्स का, केरला का, नीपा का, उससे सीखना है अपने को. तो ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, वो था 3-4 कीवर्ड थे वो करना है. भिलवाड़ा मॉडल ऑफ राजस्थान, धारावी स्लम कंटेनमेंट मॉडल. तो ताइवान का बेस्ट एग्जांपल है, केरला का बेस्ट एग्जांपल है गवर्नेंस में. ये सब रेप्लिकेट करना है एंड स्ट्रेंथन एवरी लिम्ब करना है. मिनिमल वल्नरेबिलिटी पे जाना है. डिकेट्स करने हैं, पॉजिटिव मैनर में करना है. ठीक है यार, मतलब मेरी तरफ से हो गया. आप लोग बताओ, डायमेंशन बताओ कौन से खोलोगे डायमेंशन, एंड फैक्चुअल डेटा बताना. Sir, we have 15 minutes to add anything, any dimension that is missed here. So feel free to guys talk. मेरे को तो शायद थोड़ा ऐसे से ही प्रॉब्लम था. थोड़ा वही जो मैंने स्टार्टिंग बोला कि पूरा का पूरा नेगेटिव में चले गया, और फिर बताने के लिए बस इतना था कि हमें ये चीज ठीक करनी है, हमें ये चीज ठीक नहीं है, हमें ये चीज ठीक करनी है. मतलब पूरा बस ये ठीक करने में चले गए. तो पूरा सर तो आप बोल दो, स्टार्टिंग डायमेंशन बोल दो, आप कौन सा डायमेंशन हाँ, करोगे? डायमेंशन में सेक्टर बोल रहे हो या फिर ऐसे के बारे में बताना है? आप एक ऐसा आर्गुमेंट बोल दो कि आप ये लिखोगे, जो लिखना है आपको बताओ हाँ, कि आप क्या लिखोगे.
हाँ, तो मतलब जैसे मैं स्टार्टिंग बोला कि एक तो मोदी के वो इससे करूंगा मैं कि सारी हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, तो क्वेश्चंस के फॉर्म में रहेगा, तो थोड़ा जो मैम ने किया है स्टार्टिंग तक तो उतना ही रहेगा कि ये कितना रहेगा, तो प्री कोविड तक है। फिर उसके बाद है कि सेकंड इसमें पोस्ट कोविड कैसा होना चाहिए, इंडिया ऑफ माई ड्रीम हैज टू बी रेजिलियंट, इंक्लूसिव, और ये सब रहेगा जो विजनरी जो हमारा है। इट शुड गाइडेड बाय गांधीयन के जो प्रिंसिपल है वो सब रहने चाहिए, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज है फिर ये वो कौन से पेज तो पे व्हाट आएगा आप ये जैसे थीसिस ये जो कौन भी से ले पेज रहे पे हो, आएगा आपका? देखो इंट्रो शायद 1.5 पेज चले पेज नंबर जाएगा पूछ रहा हूँ सर, 12 में उसमें। से कौन से पेज नंबर पे आपका? हाँ सर, उसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सोच रहा हूँ मैं। 1.5 पेज शायद इंट्रो वगैरह तक चल जाएगा मेरा, मतलब क्वेश्चन वाला भी आ जाएंगे शायद उसमें। उसके बाद 3, हाँ मतलब पांचवे पांचवे पेज में शायद स्टार्ट हो जाएगा, 5.5, हाँ वही 5th पेज के एंडिंग में जो रहेगा वहां से स्टार्ट हो जाएगा शायद। ठीक है फिर ठीक इसके है, बाद ओके अपन हाँ, तो फिर इसके बाद ओके। अपन ये कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन विजन से स्टार्ट करेंगे कि हमारा विजन कैसा होना चाहिए, तो वहां से हम लोग इंडिया ऑफ माई ड्रीम करके जो था, तो वो वाला चल जाएगा। इसमें गांधी का डालेंगे, इसका डालेंगे, उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो रहेगा वो। बट वन नीड्स टू डू इट्स इस स्वॉट एनालिसिस जो हम लोग करेंगे, इसमें लिखना नहीं है बट स्वॉट एनालिसिस करना है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमको उसको करना है। ऐसा नहीं है कि सभी गलत है हमारे इसमें, हमारे इसमें स्ट्रेंथ है। तो हमारी जो फार्मास्यूटिकल है, आईटी इंडस्ट्रीज है, और लेबर इंटेंसिव का जो है हमारा, हमको उसको फोकस करने की जरूरत है। कॉटेज इंडस्ट्री दैट इंडिया हैज डन विद आत्मनिर्भर भारत एंड पीएलआई स्कीम्स, ठीक है, हमने इसके ऊपर किया है। बाद में हमने जो भी हमारे नेगेटिव्स है, ठीक है, जो भी हमारे सोशल इश्यूज है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, उसके लिए हमने पहले से किया है और हमको और करने की जरूरत है, ठीक है। तो इसमें जो मलेशिया मॉडल या जो भी हमने डिस्कस किया है, मैम ने भी जो लिखा है वो वाला डाल देंगे। इसमें फिर रहेगा कि क्या हमारे थ्रेट्स है और क्या हमारे अपॉर्चुनिटीज है। तो अपॉर्चुनिटी वही है कि इंडिया ना, अब क्योंकि वर्ल्ड जो ऑर्डर है वो डिसऑर्डर है, तो इंडिया शुड नॉट ओनली ग्रो फॉर इटसेल्फ बट इट शुड बी अ गाइडिंग लाइट फॉर दी होल वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें इंडिया कैन बिकम अ क्या बोलते हैं, लीडर हो सकता है ग्लोबल। इसमें डालो आईटेक है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है, ठीक है। सो वी आर नॉट ओनली टॉकिंग बट वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट, तो ऐसा करके वो पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा पॉजिटिव इसमें। ठीक है, मतलब और कुछ अच्छा कुछ आर्ग्यूमेंट हो तो सकता है आईआर बोलिए का इसमें। आपने बोला ना, आईआर का डायमेंशन हाँ, सर, इंटरनेशनल रिलेशंस का आपने बोला, तो इसमें सर वैक्सीन नेशनलिज्म वर्सेस वैक्सीन मैत्री, ये बोल सकते हैं अपन। मैत्री सही है। ठीक है, और भी बता दो आप लोग कि क्या डिमेंशन हो सकते हैं और ये क्या हो गया सेक्टोरल अप्रोच, और हाँ मतलब सर आपका कहना है कि इजराइल सर, अमित सर बोल दो। इन्होंने केवल हेल्थ को एज ए मेन थीम लिया और सर बाकी नहीं, सारा अमित थीम सर, इसका पेरी फेरी में रह गया। और आप ऐसा करना चाहते हैं कि सारा थीम को मतलब जितना से ज्यादा हो सके इक्वल वेटेज देते हुए, एक जैसा इंडिया एट 75 वाला जो हम लोग का व्यू रहेगा, जैसा वैसा ही व्यू इसमें भी पोस्ट कोविड इंडिया कैसा होगा, तो वैसा व्यू लेना है। तो मतलब आगे का सोचना है कैसा, 10 साल 15 साल इसमें में। केवल आएगा अमृतपाल वाला। हाँ, तो फिर उसमें एजुकेशन में सोसाइटी कैसा होना चाहिए, देन आईआर में इंडिया का क्या रोल रहेगा, इकोनॉमी में इंडिया कैसा होना चाहिए, सर 5 कीवर्ड ट्रिलियन बोलो इकोनॉमी, सर, यही सब 5 अमित सर ट्रिलियन कीवर्ड इकोनॉमी, बोलो। वर्ल्ड लीडर, मल्टीलेटरल, मल्टीपोलर वर्ल्ड, इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, ये सब। देन सोसाइटी में इगैलिटेरियन सोसाइटी, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, जेंडर इक्वालिटी, देन इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट में ये सब लिखते हैं। सर डायमेंशन सब बोल दो, सोसाइटी का इंक्लूसिव बोल दिया आपने, आईआर में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बोला, इकोनॉमी के लिए सर आपने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी ये बोला। और बताओ, और कोई है पॉइंट कीवर्ड? अनएम्प्लॉयमेंट में मतलब एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। इकोनॉमी में तो आत्मनिर्भर भारत है। आत्मनिर्भर भी डाल सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ रेट होना चाहिए। ठीक है, और बताओ सर। जैसा सर बोले, लेबर इंटेंसिव सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, एमएसएमई पे फोकस करना चाहिए। तो सर कोई स्पेसिफिक बताओ ना, ये तो ऑब्वियसली लिखेंगे अपन यार। और हाँ, स्पेसिफिक में सर फूड इंडस्ट्री मतलब कोई कीवर्ड बताओ, कोई फैक्ट बताओ, क्या करना है। फैक्ट में सर ये डाल सकते सर ऐसे में सर अपन सब लोग, अमित सर मतलब मैं ये कह रहा हूँ ना, हम सबको पता है यार हेल्थ में क्या करना है, डॉक्टर बढ़ाएंगे, नर्स बढ़ाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, पैसा बढ़ाएंगे, ये सबको पता है ना सर।
हम ये कहना चाह अभी रहे तो हैं कि वही कुछ है। ऐसा बताओ जो थोड़ा सा पावरफुल लगे यार। अच्छा, तो सर वो डिस्कस करने का फायदा भी नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग बता दो। अमित सर समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब जैसे हाँ सोसाइटी बोलोगे आप, तो इंक्लूसिव करना है, ये कीवर्ड हो गया सर। सोच रहे हैं सर, वही सोच रहे हैं कुछ। अब ऑथर इजराइल वगैरह से सर पूछना कुछ ऐड करना है आपको? पॉलिटिकल बता दो। हाँ हाँ। पॉलिटिकल में। सर मतलब मेरा बस इतना मानना है कि लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम इन म्यूंडेन थिंग्स। कोई स्पेसिफिक चीज है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट है, कोई बुक का नाम है, कोई स्कॉलर का ओपिनियन है, कोई कोट है, तो वो बोल दो। जैसे सर मोदी जी का अमृत काल आता है ना, अमृत काल, एज इंडिया एंटर्स इनटू अमृत काल, तो वो वाला एक विजन है। फिर वो कौन सा है सर अपना 2047 को, ड्रीम को क्या बोलते हैं अपन? 100 ईयर्स वाला। गोल्डन ही है, कुछ बोलते हैं क्या? डायमंड जुबली बोलते हैं ना सर। और हिंदी में कोई यार मोदी जी ने बोला ना, बोला है क्या? मतलब कीवर्ड है कुछ तो यार उसके लिए। चलो ठीक है, वो स्पीच में सुना था, भूल गया मैं। हाँ ठीक है, एक बार जल्दी से नोटा दे, शायद दैट टाइम अरे पे जैसे वैसे बोल अमृत दिया। काल है ना। हाँ हाँ, वो समझ गए, लेकिन अभी नहीं याद आ रहा है, तो एक बार गूगल सर्च कर लो, नहीं तो नहीं मिला। आर्ट एंड कल्चर में आपके लिए क्या करने की जरूरत है? आपको कल्चर को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। ऐसा कोई एग्जांपल या कुछ है हमारे पास जो ये करने के लिए चल रहे हैं उस वर्ल्ड में? ठीक है, अगर नहीं आता है तो हाँ ज्योग्राफिकल सर में वो है ना, शायद मेरे ख्याल कॉलोनियल ज्योग्राफी लीगैसी में ये बोल छोड़ना है। सकते सर हैं। हाँ, तो सर, अरे सर मोदी जी कॉलोनियल। का वो है ना, मोदी जी ने क्या बोला था अभी, 5 कुछ तो दिए थे, पंचतंत्र या कुछ तो ऐसा बोला था वो, पंचामृत या अरे क्या था वो। इसमें से एक था कि हाँ सर। कॉलोनियल लीगैसी छोड़ना है अपने को। हमें अपनी अपने कल्चरल इस पे नाज रखना है, प्राउड रखना है। समझ गए सर मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसे लेकिन उनका, हाँ लेकिन मेरे को एक्चुअली उनका एग्जांपल देना थोड़ा सा ये लग रहा है, मतलब ठीक है, मतलब पॉलिटिकल थोड़ा हो जाता है, इसलिए बोल रहा था। आप गांधी का एग्जांपल थोड़ा दे सकते हो कि लेट ऑल द इंफॉर्मेशन, लेट ऑल द कल्चर्स फ्लो थ्रू माय वो रूट्स, ठीक है, बट लेट मी स्ट्रेंथन टू माय फुट्स। तो वो वाला जो है, तो वहां पे अपन डाल सकते हैं कि हमारे कल्चर्स भी आने चाहिए, जहाँ पे ग्लोबल कल्चर भी है, बट हमें उसके कारण ये नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया और उसके कारण, ठीक है। तो हमें उसको बैलेंस करने की जरूरत है, ऐसा कुछ अपन डाल सकते हैं। तो इसकी हमने सोशल मीडिया डिजिटल इंटरमीडियरीज है ना, उसके लिए हमने बिल लाया था लॉ के इस पे। तो वो एक तरीके से कर रहा है, जो हमको स्ट्रेंथन कर रहा है पब्लिक ग्रीवेंसेज रिड्रेसल जो मैकेनिज्म है। आवाज कट रही है क्या कॉन्स्टिट्यूशनल भाई? मोरालिटी। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी भी डाल सकते हो। तो ये सब आप दे सकते हैं। एएनसी का हो गया, हिस्ट्री का तो शायद मैम ने दिया था वो स्पेनिश फ्लू वाला। ज्योग्राफी, एक बार हाँ ना जो मैंने एक बोल रहे मैसेज डाला, हाँ एक बार ठीक है। मैंने एक मैसेज डाला है, देख लेना। पीएम मोदी जी ने ना पंच अपनी स्पीच में इंडिपेंडेंस डे पे 5 प्लान बताए, 5 रिजॉल्व। पहला है डेवलप्ड इंडिया बनाना है, दूसरा है कॉलोनियल माइंडसेट हटाना है अपने, तीसरा है टेकिंग प्राइड इन आवर लीगेसी, मतलब वही कल्चर में प्राइड लेना है अपने, फिर स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी एंड फुलफिलिंग ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। तो ये सर ये कीवर्ड मेरे हिसाब से आना चाहिए कि पीएम मोदी जी पंच प्राण या 5, ये कीवर्ड आना चाहिए मेरे हिसाब से। आगे बताओ। नहीं, सही है ये, अगर इतना अच्छे से कैटेगराइज करके दिया हुआ है, क्लासीफाई करके दिया है, तो ये सब अपन डाल सकते हैं इसमें। तो एक पैरा दो पैरा भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा। फिर ज्योग्राफी में शायद स्पेशल जो हमारी इनइक्वालिटीज है या डेवलपमेंट है, उसके लिए हमने एनआईपी वगैरह लाया, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है के लिए। और कुछ डिमेंशन है नॉर्थ ईस्ट के लिए, शायद हमने अलग अलग स्कीम्स वगैरह लाए हैं ताकि हम लोग उसको और लिंक कर गति सके। शक्ति, हाँ, गति शक्ति भी है। गति शक्ति। मतलब ज्योग्राफी के लिए तो चलो वो है, अमृत है, ये वाला है, स्मार्ट सिटी मिशन है, गति शक्ति है, एनआईपी है, एनएमपी है। तो वो सब अपन, कोई भी आपको अच्छा लगे तो वो आप डाल सकते हैं। फिर शायद इतने में तो हो जाना चाहिए। फिर पॉलिटिकल इसमें आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने जैसे कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी बोला है, दैट शुड बी अडहेर। इसका कोई एग्जाम्पल है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी हमको अडहेर करने की जरूरत पड़ी थी या कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी? मतलब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी नहीं डालेंगे ना, एक सर मतलब कि वो हाँ, डेटा डाल सकते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में। पेगासुस है सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, 43% एमपीज आर क्रिमिनल, हाँ क्रिमिनलाइजेशन हाँ, ऑफ सही है, डाल ये दोनों। सकते हैं।
ठीक है, तो पैगेसस वाला डाल दो और क्रिमिनलाइजेशन वाला डाल दो, दोनों एग्जांपल आ जाए। तो ऐसे ही करते हैं अपन, एक सेक्टर उठाते हैं, कीवर्ड डालते हैं और उसका एग्जांपल डालते हैं। फिर गवर्नेंस में कुछ है? और बता सर, पॉलिटिकल में और कुछ है क्या? पॉलिटिकल में हाँ, निगेटिव कुछ है, पॉलिटिकल पॉजिटिव निगेटिव? और जुडिशरी में स्पीकर रोल, सर एंटिटी वुमन का बोल सेक्शन, सकते हैं ना? अभी भी इंडिया का जो वुमन का रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ 14% है। देन सरपंच हाँ, पति, ये ये मैंने बता कर दिया। सकते सही है, ठीक है। सोशल जस्टिस के सब डिमेंशन आ जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर और भी है तो बता दो, फिर नहीं तो गवर्नेंस में मूव करते हैं। बताओ सर, गवर्नेंस का बताओ। हैं। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रेड टेपिज्म, फिर वही मतलब ई गवर्नेंस कॉन्फ्लिक्ट के ऑफ, डाल सकते हैं अपन लोग। हाँ तो वो तो पॉजिटिव में हो जाएगा। मतलब हाँ सर, एक ई तो वन गवर्नेंस एक अच्छा कीवर्ड होगा। डिजिटल इंडिया। सिटीजन डिजिटल इंडिया, वन चार्टर, नेशन वन राशन कार्ड। हाँ, सोशल ऑडिट, ये सर डाल वो देंगे। आएगा जो वैक्सीनेशन वाला था ना, कोविन पोर्टल वैक्सीनेशन का बढ़िया एग्जांपल है गवर्नेंस का। नहीं, एक्चुअली वो सही में बहुत सही है, क्योंकि उसको शायद रेप्लिकेट के लिए बहुत लोगों ने बोला भी है, कि हम कोई दो वर्ष वगैरह। कोविड था कोविन था, वो आरोग्य सेतु था, या कोविन ही था शायद ना। सर दोनों था। कोविन पोर्टल का नाम है, आरोग्य सेतु अच्छा, ऐप दोनों का था। नाम है। अच्छा, ठीक है ना। और बताओ, और क्या एग्जांपल है? कुछ याद है तो बताओ, नहीं तो सिविल सर्वेंट है फिर तो नेक्स्ट, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन सेम ही, एक्चुअली कर्मयोगी है गवर्नेंस ना। में आ जाता है। इजराइल सर क्या हो गया? नहीं है शायद वो, मेरे ख्याल से है क्या सर? ठीक है सर, आगे चलो आगे, और कुछ है पॉइंट्स? इकोनॉमी, सोसाइटी। सर एनवायरनमेंट का तो पता ही है ना अपने को। सर बता दो एनवायरनमेंट का क्या लिखोगे आप? मोदी जी का क्या था वो? पंचामृत, पंचामृत, और वो बताओ सर, बता दो। सिंगल यूज प्लास्टिक, गया वो सर 50% रिन्यूएबल वाला एनर्जी वो का तो। था 45% बाई 2030। तो बाय 2070 था ना? हाँ जी, वो तो नेट नेट जीरो जीरो बाई है वो। सर आवाज नहीं 2070। आया, फिर से बोल दो एक बार। हाँ, और बताओ। कार्बन एमिशन को कट करेंगे बाई 45%, 2005 के लेवल से बाई 2030। फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने का भी बात किया था ना, एक वो था। कितने हो गए, क्या मैंने हो ग्रुप में डाल दिया, एक बार देख लो। पहला है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी लाना है बाय 2030। हाँ, दूसरा है सर 50% रिन्यूएबल एनर्जी से आना चाहिए। 50% एनर्जी रिन्यूएबल से आएगा बाय 2030। हम्म, तो चौथा है कार्बन इमिशन। तीसरा है कार्बन इमिशन 1 बिलियन टन से कम करना है। हम्म। फिर कार्बन इंटेंसिटी से 45% से कम करना है। अभी सर हम लोग का करंट में और सर नेट जीरो बाय 2070। 16% है हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में, 16-17%। ठीक है सर, ये पंचामृत मेरे हिसाब से यार, ये दो जो है ना, पीएम का पंच प्रण और पंचामृत, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। पूरे जगह पे यूज होगा, जीएस में, ऐसे में सब जगह यूज होगा ये। अगर पांचों याद नहीं आ रहा तो दो तीन लिख दो, लेकिन लिख लिख लो। सर फिर ये पुलिस के लिए स्मार्ट पुलिस भी कुछ था ना? हम्म, बता दो सर क्या है वो?
एथिका का जो वो इजी था, सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रीजनेबल या रिस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंट। एक दूसरा भी था जो आई इंटरनल सिक्योरिटी में होता है, उसके लिए शायद कुछ देखना पड़ेगा, मेरे को याद नहीं है। समाधान। वो है स्ट्रिक्ट, सेंसिटिव, मॉडर्न, मोबाइल, alert, accountable, reliable, responsive, tech savvy, and trained. हाँ, ये था शायद। मतलब यहाँ पे पुलिस का या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखना हो ना, ये अगर लिखना हो तो लिख सकते हो आप। मैं डाल रहा हूँ इसको ग्रुप में ना, एक सेकेंड बस। और कुछ इकोनॉमी में और और क्या कुछ है था क्या? बताओ। इकोनॉमी में शायद रिजिलियंट करने के लिए शायद वही सप्लाई चेन बिल्ड बैक बेटर वगैरह जो कर रहा था। और कुछ है? पीएलआई स्कीम, ठीक है, उतने में हो जाएगा शायद। आत्मनिर्भर भारत वो सब किया था अपन। एग्रीकल्चर, डबलिंग फार्मर इनकम, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, परंपरागत खेती। क्या? हाँ, परंपरागत खेती। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, फूड सिक्योरिटी, ये सब लिख सकते। ठीक है। डिजास्टर में तो शायद सीडीआरआई और राइस, राइस ही था ना, तो वो दोनों दोनों डाल सकते हैं अपन लोग। आयरिश था, IRIS। आइरिस, राइस शायद वो है एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो आइरिस और सीडीआरआई अपन डाल सकते हैं। और कुछ क्या बचा है अभी? साइंस एंड टेक, मतलब उसमें तो चलो मैम टेक ने में बहुत तो सारा डाला था। हाँ, बोलो बोलो। वो रिसर्च में जो फंड है उसको बढ़ाने का। सर अगला टॉपिक चालू करेंगे सर? हाँ, अमित सर लिख अगला लो। टॉपिक चालू करेंगे? तो आप इसमें लोग करो कंक्लूजन बराबर। और इसमें कंक्लूजन और समरी का, सॉरी, समरी तो ठीक है, कंक्लूजन कैसे करना है? सर कोई गांधी का स्पेसिफिक तो नहीं है राम सर राज। ऐसे, लेकिन वही ऐसा बोल सकता है ना कि गांधी का राम राज से कर हाँ सकते सर, हैं। गांधी का रामराज पकड़ लो, फिर इंडिया 2047 वाला ड्रीम पकड़ लो, फिर वो है ना विश्व गुरु वाला, विश्व गुरु बनना है इंडिया को, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वर्ल्ड लीडर, नाम वगैरह, फिर वो सुपर पावर बोलते हैं ना, ये सब। सब मेरे मतलब ख्याल से मैं शायद वो हर फील हर स्पीयर का ना एक एक कीवर्ड डाल दो बस। एक्चुअली वो समरी में आ जाएगा। मैं कंक्लूजन में क्या बोल रहा था कि कंक्लूजन में ऐसा पिछले बार जो था वही कि नेशन, इंडिविजुअल और जो भी है, एनी एंटिटी इज डिफाइंड बाय द चॉइसेस इट मेक्स, not by the circumstances in which it is find itself or the environment find itself. COVID has certainly provided the exposed the vulnerability of India in many sectors जो भी है, but it also provided it's an opportunity to rise above its own difficulties and to move towards a more क्या जो ड्रीम था राम राज्य ऑफ गांधी, ऐसा करके कुछ शायद अपन एंड कर सकते हैं, मतलब सिमिलर ही है। ठीक है, फिर और किसी को कुछ और अच्छा समरी है तो वो बोल दो, नहीं तो फिर नेक्स्ट खेलते हैं। ठीक है सर। सर इसमें कहीं पे भी ना कोट नहीं डाले अपन ने। एक सर कोट याद आ रहा है मेरे को, औरबिंदो घोष को डाल सकते हैं कि इंडिया का ग्रोथ या फिर इंडिया का जो बड़ा बनेगा ना इंडिया, तो वर्ल्ड को फायदा होगा। और बताओ ऐसा कुछ और यार, अच्छे अच्छे कोई कोट नहीं है इंडिया के बारे में? अरे बहुत है, वो मार्क ट्वेन का था ना, अपन ने पिछली बार ही किया था, मदर गॉडेस ऑफ कल्चर और वो सब जो है, तो वो टू रियली डिफाइन इंडिया इन टर्म्स ऑफ दिस,
तो मार्क ट्वेन करके बोल देंगे अपन सेड, और वी हैव टू टेक इट फॉरवर्ड एक वो, हाँ, तो ऐसे अपन डाल सकते हैं। फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूं? कुछ ऐड करना है किसी को? हाँ, मेरे ख्याल से तो हो गया।